and welcome. My name is Bhakti Kothari and you're watching Indian Masterminds. UPSC CSE undoubtedly is one of the toughest exam and a dream for millions. But have you met someone who even after clearing 22 prelims, 8 mains and figuring twice in reserve list could not become a civil servant? And yet, he doesn't see all those years of preparation and struggle as failure, but gives credit to UPSC for making him a more sensitive, responsible, and better professional and human being. He believes that nothing can beat getting into the services, but the preparation itself is a great tutor. This journey can change lives and help you succeed in every walk of life. Let's welcome Mr. Krishna Kumar, who was an aspirant once, but is now leading a QA team in a Delhi-based IT company. Welcome, sir. Thank you, Bhakti. Sir, so you graduated in 2013 and you were still focused on preparation even during that time. 7 years is a very, very long time for a dream. So tell us a little more about this. Every people has a dream, but they have to wait the better time to pursue your dream. When I was passing 2013 and came for this IT job, that time I was not financially ready to go for UPSC preparation as I have already bank loans and some other responsibility. So I first fulfilled those things, and in my one corner of my mind, always my dream was life. So I working on that time. Some like Forum IS and some other UPSC coachings are providing daily quizzes. So I just cover those things and give some time for men's examination, all the things. So I was doing both the way, and then I keep my dream life for 7 years. That's lovely, sir. And tell us a little more about your family. उनका क्या reaction था जब आपने उनको बताया कि आप UPSC CSE करना चाहते हैं? Being a middle class guy, you know, in India, parents want their child jobs to be more secure. Yeah. And they want to settle them very early. So when I said them, I want to do preparation for UPSC examination, they say no. They give me so many examples of the failures who came back with nothing. After giving 5 years, 10 years to the UPSC examination, and they have nothing in their hand. Even they are not get married. So my parents say no, don't go for this. You are already successful in the eye of the society. You are doing well, and you are doing a corporate job in Bangalore. So you should go for that. Okay, and 2018 में we know that you quit your job and you moved to Delhi. तब तक I think 3 attempts आप already दे चुके थे. So ये decision लेने का कि job quit करके Delhi move करने का, इस पे आपके parents या relatives का क्या reaction था? They are not happy. But मैं इसलिए था कि मेरा उस तक मैंने 3 UPSC प्री दिया था, जिसमें मैंने 2 क्रैक किया था. प्लस मैंने स्टेट PSC, UP PCS एंड BPSC के भी प्री किए थे. तो मैंने देखा कि मेरा एक लेवल बन चुका है कि मुझे अब आउटसाइड के इन्फ्लुएंस उतने इम्पैक्ट नहीं करेंगे. ना आई एम रेडी. एंड दिल्ली में इसमें कोचिंग के लिए नहीं आया. दिल्ली एक ऐसा माहौल देता है जहाँ आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे. आप कमरे से बाहर जब भी निकलोगे राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर के एरिया में, आपको लगता है कि हाँ, आई एम एट अ गुड प्लेस फॉर प्रिपरेशन एंड देयर लॉट्स ऑफ स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल देयर. तो मैंने क्या किया कि मैं जब भी प्रिपरेशन के दौरान, पहले भी बैंगलोर में रहता था, तो साल में 2 बार दिल्ली आता था और यहाँ से सारे स्टडी मटेरियल और अपने आप को रिचार्ज करके जाता था. तो इसीलिए मैंने दिल्ली को चूज किया और मैं दिल्ली आया. And like we know, do you had a lot of struggle, you faced a lot of struggle जब आपने corporate sector में वापस जाने की कोशिश की, आपको सब कुछ from scratch start करना पड़ा. उस moment पे were you regretting your decision of quitting your job beforehand and going for your preparation, UPSC preparation? No, I never regret about my preparation. क्योंकि मैंने इस preparation में बहुत कुछ सीखा. मैंने 3 साल में 6 सब्जेक्ट के ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई की. बाकी मैंने इस कंट्री को बेटर जाना, पूरे वर्ल्ड को जाना, बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ये हुआ. मैंने एक साइंस ग्रेजुएट होने का, मुझे ह्यूमैनिटीज के काफी कम नॉलेज थे, मैंने वो सीखा. तो मुझे लगा कि 3 साल जो मैंने सीखा है वो मेरे लिए एक सेमी MBA के रूप में काम किया. और अगर मैं फिर से कॉर्पोरेट जाता हूँ, तो कॉर्पोरेट में सिर्फ काम एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना ही नहीं होता है, वहाँ साथ ही साथ एक टीम को भी लीड करना है. इसके लिए ह्यूमैनिटी काफी जरूरत चीज है. तो मैंने लगा कि मैंने दोनों चीज लर्न करके अब जा रहा हूँ कॉर्पोरेट में, तो अब मैं बेटर से कॉर्पोरेट में काम करूँ. राइट सर. एंड UPSC CSE प्रिपरेशन के साथ साथ आपने स्टेट सर्विसेज का भी एग्जाम देना शुरू किया.
2 बार आप रिजर्व लिस्ट में भी आए, जो कि इट्स सो क्लोज टू गेटिंग इट बट स्टिल नॉट गेटिंग इनसाइड. सो हाउ डिड यू डील विद दैट सेटबैक? देखिए, सेटबैक के लिए ये इम्पॉसिबल है उसे मैं अवॉइड कर दूं, बट उससे निकलने के बहुत सारे तरीके हैं. जो भी प्रिपरेशन है वो मैंने जो ऑब्जर्व किया अपने आईआईटी के, यूपीएससी के फेलियर के बाद, कि हर एग्जाम का एक नंबर ऑफ आवर्स होता है. अगर आप वो नंबर ऑफ आवर्स पे अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं करोगे तो आप कभी भी मेरिट लिस्ट में नहीं जा पाओगे. तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो नंबर ऑफ आवर्स मैंने कंप्लीट ही नहीं किया. हाँ, मैंने हार्ड वर्क किया, स्मार्ट वर्क किया, बट उस नंबर ऑफ आवर्स के कंप्लीशन के नहीं कारण मेरी कहीं ना कहीं लैगिंग रही प्रिपरेशन. इसका मैं मेरिट लिस्ट से बाहर रहा, तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया. प्लस साइकोलॉजिकली और सोशली मेरी काफी डेवलप हुई यूपीएससी के तैयारी के दौरान. तो मुझे लगा कि यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ है, हर कोई प्रिपेयर कर रहा है, अगर हम इससे बाहर हो गए तो कुछ तो सीख के बाहर हुए. इसे सीख के मैंने उस चीजों से निकला. और बाकी मेरी फ्रेंड सर्किल भी काफी अच्छी रही है, जो मुझे हमेशा सेटबैक में निकालने में फायदा दिया है. अगर मैं अपनी एक फ्रेंड की स्टोरी बताऊं तो उन्होंने 33 इयर्स में आफ्टर यूपीएससी के सारे अटेम्प्ट होने के बाद मैंने एमटेक में एनआईटी जालंधर में एडमिशन लिया. अच्छा. और उनके साथ जितने भी क्लासमेट काम उनके साथ पढ़ रहे थे, ऑल आर इन 23-24. मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कभी ये नहीं लगता कि इतने लेट में एमटेक में गया? बोले देखो, हर की सब ड्रीम्स अलग होते हैं. हर कोई अपने एज के अनुसार ही नहीं काम करता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं. जैसे तुम ही यूपीएससी लेट से आए तैयारी करने, वो खुद भी आया लेट से, तो उसके पीछे हमारे अपने कारण थे. तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे यूपीएससी जर्नी नहीं मिला तो मैं टीचिंग में जाऊँ. तो उसने 33 में एमटेक ज्वाइन किया. तो ऐसे फ्रेंड्स रहने से भी सेटबैक से निकलने में काफी फायदा मिलता है. बिल्कुल सर. एंड एक चीज जो मैं सोच रही थी, दैट नाउ दैट यू लुक बैक, तो आपको क्या लगता है कि क्या थी वो एग्जैक्ट लैक क्या था? क्या आपको लगता है कि यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज का प्रिपरेशन साथ में करना, एग्जाम साथ में देना, मे बी वो चीज़ वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी? क्या था जो आपको लगता है कि आपके प्रिपरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से आप शायद नहीं क्लियर कर पाए? हाँ, एक तो ये कारण है कि आप जब दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो कहीं ना कहीं तो आपका लैग करेगा ही. और जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब बिहार और यूपी और यूपीएससी में डिफरेंट ऑप्शनल्स होते थे. तो मेरी ऑप्शनल यूपीएससी और स्टेट पीएससी बिहार में मैथली थी, जबकि यूपी के लिए ज्योग्राफी था. तो मैं कहीं ना कहीं डबल ऑप्शनल पे कवर कर रहा था. तो वो मेरी एक कमी रही. अब और बाकी स्टेट पीएससी के लिए आपको स्टेट स्पेसिफिक नॉलेज पे भी ज्यादा काम करना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, अगर आप तैयारी करते हो तो यूपीएससी के अगर आपके पास अटेम्प्ट है तो फुली आप यूपीएससी पे ज्यादा फोकस करो. क्योंकि उसकी अगर आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, आप अगर नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीट कर लोगे तो स्टेट पीएससी के लिए एज भी है. अगर आप बाद में कहीं जॉब ज्वाइन भी कर लेते हो यूपीएससी में सक्सेस के नहीं बाद भी, तो आप स्टेट पीएससी निकाल सकते हो जॉब के साथ, क्योंकि आपकी एक बेस तैयार है, आप नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीटेड है. बिल्कुल सर. एंड ऑफ कोर्स नाउ यू आर इन अ ग्रेट जॉब, यू आर डूइंग सो सक्सेसफुल इन लाइफ. तो अभी आपको क्या लगता है कि अब जिस मुकाम पे आप हैं, आप अपने आप को सक्सेसफुल कंसिडर करते हैं, कि आपको लगता है कि अगर यूपीएससी क्लियर कर लिया होता, आईएएस बन गए होते तो शायद बेटर होता? इस सक्सेसफुल का कोई डेफिनेशन ही नहीं है. जब मैंने भी यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू किया था तो एक मिडिल क्लास लड़कों का जो ड्रीम होता है, पावर, बंगलो, उसके साथ किया था. बट जब तैयारी के दौरान बहुत कुछ सीखने को मुझे लगा कि नहीं, ये प्रिपरेशन तो पावर बंगला का है ही नहीं. तो एक ह्यूमन चेंज, मतलब कंप्लीटली चेंज ऑफ माइंड है, जो एक ट्रांसफॉर्म कर देता है कंप्लीट एक ह्यूमन बीइंग को. तो अगर इसमें सक्सेस मिला तो ठीक है, नहीं तो अदर वे भी है सोसाइटी को बैक करने का. तो इसके बाद जब मुझे यूपीएससी में फेलियर मिला तो मैंने एक ट्रैवल जर्नी स्टार्ट किया इंडिया में. मैंने डिफरेंट क्लासेस ऑफ ट्रेन में ट्रैवल किया, लोगों से डेटा कलेक्ट किया कि आप कैसे सोसाइटी को बैक देते हैं. फिर अपने बहुत सारे स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड को देखा कि वो अभी क्या कर रहे हैं. तो मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे ऐसे स्कूल फ्रेंड भी एक हैं जो IIT IIM से पढ़ के सोसाइटी के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. और बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली बेस्ड जॉब कर रहे हैं लेकिन अपने सोसाइटी के लिए जा के काम कर रहे हैं. मुझे लगा कि नहीं, सक्सेसफुल का कोई बेस्ट डेफिनेशन नहीं है. मेनली लोग यूपीएससी में अगर सोसाइटी को सर्व करने के लिए जाते हैं तो अदर वे में भी कर सकते हैं. बिल्कुल. मैंने ये रास्ता फिर से. That's amazing, sir. And क्या आपको लगता है कि एक बैकअप प्लान होना ज़रूरी है? मतलब इंसान को पूरी तरीके से अपने आप को यूपीएससी प्रिपरेशन में ना इन्वॉल्व करने के साथ साथ एक बैकअप प्लान भी माइंड में होना चाहिए कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो शायद मैं इस चीज़ में जा सकता हूँ. तो क्या आपको लगता है ऐसा इम्पोर्टेंट है? इसमें 2 कैटेगरी हम कर सकते हैं. एक इकोनॉमिक बेसिस पे
कि आपका बैकग्राउंड क्या है, और दूसरा आप किस एज में आते हो प्रिपरेशन करने। अगर आपकी इकोनॉमिक बेसिस बहुत अच्छा नहीं है, आपके पेरेंट्स वेल फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो एक बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए। और आप 3 ईयर्स से ज़्यादा इसमें नहीं दो। अगर 3 ईयर्स में आपको लग रहा है कि ऑन द पाथ, अगर आप मेंस क्लियर कर रहे हो, इंटरव्यू प्रिपेयर हो रहे हो, तब आप प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन अगर आपका लगातार प्री ही नहीं निकल रहा है, तो फिर मैं कहूँगा कि आप कोई अदर ऑप्शन भी ढूंढो। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप किस एज में आ रहे हो। अगर आप 21 ईयर्स में आते हो, इट्स ओके, आप पे उतनी डिपेंडेंसी नहीं रहती है, पेरेंट्स भी आपको फ्रीडम ज्यादा देते हैं। लेकिन अगर आप 25, 26 के बाद आते हो प्रिपरेशन करने, यू हैव लिमिटेड अटेम्प्ट्स और आपके पास फाइनेंशियली बैकअप भी नहीं है, तो आपको एक बैकअप प्लान लेके आना चाहिए। बिल्कुल। जैसे मेरे केस में अगर आप देखोगे तो मैं और मेरे दोस्त दोनों ने 5 इयर्स एक्सपीरियंस लेके आए तैयारी करने, और दोनों बैक टू फिर से कॉर्पोरेट गए, वो फिर से टीचिंग बैकग्राउंड में गए, एमटेक कंप्लीट किया। तो मुझे लगा कि ये ऐसा भी है, अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं रहते तो हमारी जर्नी और टफ हो जाती है। बिल्कुल, आई एग्री सर। एंड लास्टली, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव आवर एस्पिरेंट्स जो कि प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, इस जर्नी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस रिजल्ट से और उस फेलियर से डर रहे हैं? जर्नी, एक तो मैं सबसे पहले इस जर्नी में एक मेंटर का होना बहुत जरूरत है। मैं अगर फेल हूँ उसके कारण एक मेंटर का ना होना भी था। एक ऐसे बैकग्राउंड से जहाँ पर कोई भी मोटिवेटर नहीं है यूपीएससी, फैमिली भी किसी को नहीं देखा है यूपीएससी, तो आपको वो मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो एक मेंटर, वो मेंटर कोई भी हो सकता है। एक फेलर, जैसे मैंने जब आपके साइट पे अपना आर्टिकल डाला था कि आई फेल्ट बट आई एम ओके, तो मैंने देखा मुझे बहुत लोगों ने अप्रोच किया है मेंटर की, सर बताओ आप कैसे मतलब करना चाहते हैं। तो मेंटर क्या होता है कि आपको ये बताता है कि कैसे पढ़ना है, क्या चीजें नहीं पढ़नी है, तो आपकी तैयारी कम टाइम में ज्यादा इफेक्ट डालती है आप पे, मतलब आप ज्यादा फ्रूटफुल हो जाती है। अदरवाइज क्या होता है, अगर मेंटर नहीं है तो मैंने जैसे इतना चीजें पढ़ा कि कभी कभी इतनी कचरा चीजें भी पढ़ गया जिसका कोई रिक्वायर्ड नहीं था, और तो वो जर्नी को थोड़ा सा टफ बना देती है। तो जो भी एस्पिरेंट हम बोलेंगे, आप एक मेंटर जरूर चुनो। अगर आप एफर्ट नहीं कर पा रहे हो कोचिंग, तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत सारे कोचिंग चलाते हैं दिल्ली में, आप उनके अंदर लो। प्लस किसी भी कोचिंग का एक लेसन प्लान देखो, क्योंकि जो लेसन प्लान होता है ना, वो कंप्लीट डिफाइन सिलेबस पे बेस्ड होता है। और अगर आप लेसन प्लान को फॉलो करो तो आप नंबर ऑफ आवर्स को ही फॉलो करोगे। और मैंने जो ऑब्जर्व किया, नंबर ऑफ आवर्स इज द बेस्ट वे टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन, इवन आईआईटी और यूपीएससी। अगर आपका नहीं कंप्लीट है नंबर ऑफ आवर्स, तो आप नहीं कर पाओगे। On that note, we will end this conversation. So this was Mr. Krishna Kumar, who has proven that it's not the goal, but the journey that matters in true sense. Thank you so much for taking out time for us today, sir. And it was lovely having you here. Thank you so much, sir. Thank you, India.